Hello and welcome back to Perimenopause and Beyond. I'm your host, Dr. Sulbha Arya, an oncologist and a perimenopausal coach, helping women understand and navigate this space that they are undergoing, the transitions that they are undergoing during midlife. So I help women through a structured process to navigate these shifts. So, hello and welcome back. Today we have with us a very wonderful person, Anshi Raj, who began her career as a chartered accountant working with an MNC, living what many would call a perfectly structured life. She got married in 2006. By 2012, she was a mother of two beautiful daughters, managing work, home, and motherhood all at once. But like so many women, somewhere in between responsibilities and roles, she found herself stretched in multiple directions, giving her all, yet feeling like she was losing a part of herself. It began to take a toll, not just emotionally, but on her health too. And that's where her story took a very powerful turn in 2015, and she decided to take control of her life back, starting with something as simple as working out. What began as 1 hour of me time slowly transformed into the most meaningful part of her day. So much so that she chose to completely shift paths from finance to fitness. Today, she is the founder of Fitbeats Women Fitness Studio, where she helps women not just to get fit, fe- but feel stronger, happier, and more connected to themselves. She's creating a space where women feel alive again. Anshi, I'm so happy to have you with me here today. Hi, Sulva. So Hi. nice to be here on Perimenopause and Beyond. Thank you for having me. Thank you so much, Anshi, and thank you so much for agreeing to be a part of this program. Thank you so much. I'm truly excited. So, Anchi, I would like to begin with a question with you. Like you are a CA, you've been working all your life in an MNC. So, what was that moment when you actually thought of transitioning as a fitness coach? Okay, so back in 2013, I was a CA professional who was juggling with the work, with the role of a mom, wife, daughter in law, daughter, and many more roles that each of us play on a day to day basis. I was not doing something which was exceptionally unusual. सब करते हैं, but मेरे लिए probably it reached to a point where in midst of too much work, I one fine day forgot to wish my husband happy birthday. And at approximately at the same time, we went to Ladakh for a vacation. And more than a vacation, it became an eye opener for me. I was gasping for my breath there and saying कि please देखो मुझे यहाँ से जिंदा ले जाना मेरे को यहाँ नहीं मरना. So that was a very embarrassing moment, and at the same time, I felt I need to get things under my control. I was not too fat, at least in my own eyes, because being a part of the Punjabi clan that we are, people are a little more on the heavier side. So I thought I was pretty fine that ways. But the idea of fitness class definitely was not just weight loss. It was to break the mundane routine, to do something for myself and definitely breathe better. And as they Yes. say, good things sometimes choose you rather than you choosing them. Fitness chose me. It's a very, very powerful thing for you to say that. Uh, Working out is not just about fitness, it's also Yeah. about other things. So you Right. once said that 1 hour of workout became your best hour of the day. So what made that hour so powerful for you? See, it became so important because that 1 hour decided कि मेरे बाकी 23 hours कैसे रहेंगे. So एक घंटा वो एक घंटा मैं अपने लिए काम करती थी. बाकी 23 hours I used to work for everyone. उस एक घंटे में आई वॉज जस्ट अ स्टूडेंट जो आता था अपनी ट्रेनर की सुनता था एंड आई was focused on learning and rest 23 hours I would juggle
with different roles. जैसे हम as women we do as to juggle as a mom, as a wife, as a boss in the office, sometimes as a subordinate in the office. So many different roles that we work on. But वो एक घंटा ये decide कर देता था मेरे लिए कि अगर मैंने वो एक घंटा अपने लिए दिन का निकाला है तो 23 hours I'll have patience to deal with all those roles then. So So that is how beautiful. that important it became for me, and hence it was important. Yeah, so here in the beginning, also in the first answer, also you shared that it was not about weight loss for you. So, but I've seen in my practice that many people still see workout as something that has to do with weight loss. In your experience, how does movement change people emotionally and mentally? I really want you to say this answer because I want people to come out of that mindset that fitness is only for movement, weight loss. See, I run a fitness studio oriented only on women. So I see a lot of women coming in the studio day in and day out, working on online platforms day in and day out. So what I've seen is generally females have a mindset कि fitness class वो तब join करते हैं जब दे वेयर दे जनरली डिसाइड कि मुझे वेट लॉस करना है, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट जरूर वेट लॉस होता है फॉर मोस्ट ऑफ द मेन, स्टिल नॉट फॉर एवरीवन। जैसे मेरे जैसे भी लोग होते हैं जो वेट लॉस की वजह से ज्वाइन नहीं करते, बट स्टिल मैक्सिमम फीमेल्स हु ज्वाइन इन करंट सिनेरियो आर ड्यू टू द फैक्ट दैट दे वांट टू लूज वेट। बट जो उनको कंसिस्टेंट रखता है, द फैक्ट कि वो कंसिस्टेंट रह पाते हैं अपनी इस वर्कआउट जर्नी में, वो वेट लॉस का गोल नहीं रहता। दैट बिकम्स मोर ऑफ एन इमोशनल शिफ्ट। सो मूवमेंट जो है हर तरीके से स्ट्रेस कम करता है, आपके मूड्स को इम्प्रूव करता है और कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। आप एक दिन एक एक्सरसाइज कर लो जो आप पहले बहुत अच्छी नहीं करते थे, और नेक्स्ट डे आप यू आर डूइंग लाइक ओवर द पीरियड यू स्टार्टेड डूइंग इट बेटर, यू फील सो हैप्पी अबाउट इट। एक चैलेंज मैं क्लास में दे दूं जो कि आपको लगता ही नहीं था इवन इन योर ड्रीम्स कि आप कभी कर सकते हो, और आप वो कर लो, एंड दैट कॉन्फिडेंस, दैट हैप्पीनेस इज अनबीटेबल। सो मतलब आप उसको वेट लॉस के गोल से कंपेयर ही नहीं कर पाओगे। दैट इमोशनल शिफ्ट हैपेंस like this, like people are such so happy about it. थोड़े दिन पहले there was a lady who came to me and said कि मैम मैं जब क्लास ज्वाइन करी थी उस टाइम पे ना मैं अपने लेसेस नहीं बैठ के बांध पाती थी, एंड नाउ शी सेड कि अब मैं इतने आराम से मान लेती हूँ। मैम मेरे घर वाले भी बहुत खुश है इस चीज को देख के, दैट द काइंड ऑफ मूवमेंट्स दैट आई फ्रीली मूव इन नाउ। सो वो सिर्फ एक वो पर्टिकुलर पार्ट नहीं रह जाता। वेट लॉस इज नो लॉन्गर रिमेन्स देयर एरिया ऑफ कंसर्न। उनको पता है कि एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मूवमेंट्स दैट दे आर गोइंग थ्रू दिस विल हैपन, but what is more important is building that fraternity for them, moving freely without any pains, and lot of other things like people की diabetes control में आती है, PCOD, PCOS, these things which women deal with on day in day out basis, हमें पता नहीं होता। most of them are just lifestyle disorders, वो ठीक होते हैं and people start feeling better anyways. Yes, yes, yes. And you also just mentioned that movement helps in improving confidence. So, what are the, how does it shift the way people see themselves? So इस चीज का आंसर देने के लिए आई गिव यू माय छोटा सा एग्जांपल। सो आई रिमेंबर मेरी ऑफिस की एक शर्ट हुआ करती थी और वो मेरे को टाइट हो गई थी, सो आई केप्ट इट इन माय बेड बॉक्स कि अब तो ये मेरे को आती नहीं है ऐसे टाइट। आई केप्ट इट इन माय बेड बॉक्स एंड इन द मीनवाइल आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, एंड वर्कआउट जब करना शुरू कर दिया था उसके बाद में अचानक से एक दिन भी ओपन दैट बेड बॉक्स, वो शर्ट निकली एंड आई वोर इट, एंड टू माई सरप्राइज आई वॉज फिटिंग इन दैट शर्ट सो वेल कि मैं इतनी एक्साइटेड और हैप्पी थी कि मैंने फट से एक फोटो खींची, फेसबुक पे अपने ट्रेनर को टैग किया एंड आई टोल्ड हर कि मैम देखो मैं इसमें फिट हो गई। सो वो जो शिफ्ट था, वो शिफ्ट हैप्पीनेस जो थी तो थी, बट दैट वॉज मोर ऑफ द कॉन्फिडेंस। यू स्टार्ट, वो कॉन्फिडेंस आपको एक ऐसा कॉन्फिडेंस देता है, बिकॉज आई सीन जब वेट लॉस वेट गेन होता है आप मूवमेंट नहीं कर पाते, यू लूज दैट कॉन्फिडेंस टू ड्रेस अप फॉर योर सेल्फ, लेट अलोन फॉर एवरीबडी, आप अपने लिए भी तैयार होना छोड़ देते हो। सो यू सी पीपल देन बाइंग
न्यू क्लोथ्स, जिम फिटवेयर, फिटेड क्लोथ्स, मतलब अपने लिए कॉन्फिडेंस आता है वो नई चीजें ट्राई करने का जो आप बिल्कुल छोड़ चुके होते हो कि मैं कभी दोबारा ये कपड़े पहन पाऊंगी कि नहीं पहन पाऊंगी। सो वेट लॉस होता है, उसकी वजह से जो शिफ्ट आता है वो एक इट्स लाइक डिफरेंट लेवल। बहुत मजा आता है, मतलब आई एम श्योर जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा दे विल इको विद दिस कि एक पुराना कपड़ा जो कभी फिट ना होता और वो फट से फिट हो जाए, लोग आके बोलते हैं मैम कुर्ते के बिना मतलब सिलाई खोले भी अब आ रहा है मेरे को। सो दैट्स amazing. So that gives them confidence It's to look amazing. at themselves in a very positive way. Yes, yes, yes. So today, as you know, बहुत सारी forms of movement available हैं. योगा है, strength training है, aerobics है, martial arts है, HIIT है. तो कैसे कोई डिसाइड करे कि उनको क्या करना चाहिए, क्या सूट करता है? So a very simple answer to it is कि try as many things as you can and stick to one thing that you can be consistent with. Like I was a nerd. I was somebody who would not even play in her games period. मतलब sports का period होता था. I was the one sitting with a book in one corner and just reading. So I was a very studious child. तो मेरे क्लास के बच्चों को तो अभी भी जब मैं कभी मिलती हूँ, लेकिन some reunions they say कि I can't believe that you are running a fitness studio of your own. So that's amazing. But होता ये कि जब आप सब चीजें ट्राई करते हो तो आपको समझ में आता है आपको क्या इंटरेस्ट दे रहा है, व्हाट यू वांट टू वर्क। आपको डांस पसंद है, आप डांस करिए, आपको एरोबिक्स पसंद है वो करिए, योगा पसंद है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पसंद है, जो पसंद आता है आप वो करिए। बट दो चीजें जो जरूर करनी चाहिए वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड मोबिलिटी, वो जरूर ध्यान रखना चाहिए। उस ट्रेनर के साथ में करिए जिसकी क्यूज आपको समझ में आते हैं, जिसकी बताई हुई बातें दे स्टिक टू योर हेड। सो दैट्स हाउ यू शुड, लाइक क्या करना चाहिए इसका सिंपल आंसर है जिसमें आप कंसिस्टेंट रह सकें, दैट यू शुड बी। So you just mentioned strength training. कैसे strength training, how do you say it's very important for women, especially जो midlife में आ जाती है around 30s and 40s? हाँ, सो इतना इम्पोर्टेंट है कि जितना आपके लिए खाना खाना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, दैट इम्पोर्टेंट इट इज। सो वी ऑल नो कि एज वुमेन व्हेन वी ग्रो ओल्ड, स्पेशली व्हेन वी ग्रो ओल्ड, हमारी मसल्स बहुत जल्दी डेटेरियोरेट होती हैं। सो हमारी मसल्स लूज होने लगती है, वी स्टार्ट फीलिंग दोज सैगिंग हैंड्स, वी स्टार्ट सीइंग दोज sagging breast. So muscle loss होने की वजह से there are a lot of problems that develop. So strength training is very important. You should aim to do strength training at least 2 to 3 times in a week for sure. अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि मेरे को 50 किलो का डंबल उठाना ही जरूरी है तभी वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। Strength training can be as simple as strength training with your own body weight. It is absolutely okay if you're training with your own body weight. You have a 50, 60, 70 kg of body. आप पहले अपनी body को control करना सीख लेंगे तो that is definitely giving you enough strength. Strength training would mean आप जितना पहले जितने वजन के साथ में कोई चीज कर पाते थे, आप उससे ज्यादा वजन के साथ में या तो कोई चीज कर पाए या फिर सेम वजन के साथ में ज्यादा रेपिटेशंस कर पाए। सो मेरे को लगता है अब मेरे लिए इट्स ओके कि मैं 60 kg ऑफ बॉडी वेट के साथ में आराम से पुशअप कर सकती हूँ। सो देन इट विल बिकम इम्पोर्टेंट कि मैं उस पुशअप के ऊपर भी कुछ वेट डाल के पुशअप करने की कोशिश करूँ। बट डेफिनेटली अलॉन्ग विद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इट्स इम्पोर्टेंट दैट हम मोबिलिटी पे काम करें। सो जस्ट इमेजिन एक स्क्वाट करो, आपको स्क्वाट आपने ट्रेनर ने आपको बोला कि आप 10 किलो के डंबल के साथ में स्क्वाट करो। सो उस स्क्वाट की रेंज क्या है, दैट विल डिपेंड अपॉन हाउ मोबाइल योर बॉडी इज, उसकी रेंज ऑफ मोशन। एक स्क्वाट मेरा सिर्फ यहाँ तक हो सकता है, दूसरा स्क्वाट यू माइट बी एबल टू गो डाउन अ लिटिल मोर विद द सेम वेट, बट इट गिव्स यू डिफरेंट इम्पैक्ट। तो बट उस मोबिलिटी पे भी साथ में काम करिए, बिकॉज स्पेशली विद विमेन एज के साथ में बहुत सारे स्टिफनेस आने लगती है जॉइंट्स में। उस जॉइंट को फ्लेक्सिबल रखने के लिए इट्स इम्पोर्टेंट कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ में हम मोबिलिटी जरूर इंक्लूड करें। थिंग्स लाइक फ्रोजन शोल्डर होना, इट्स लाइक वेरी कॉमन विद पेरीमोनोपॉजल लेडीज, इट्स वेरी कॉमन, इट्स लाइक वी कॉल दिस अ 40-year-old शोल्डर। सो 40 साल का शोल्डर हो गया इसका मतलब ये नहीं कि उसको फ्रीज होना जरूरी है,
आप उसको मोबाइल रखिए वो फ्रीज नहीं होगा, आप उसको मोबाइल नहीं रखेंगे वो फ्रीज हो जाएगा. सो Yes, yes, I agree with that. मिड लाइफ में स्ट्रेस और इमोशनल एंजाइटीज भी बहुत कम आती हैं. एक तो हमारा एनवायरनमेंट भी बहुत ओवरवेलमिंग होता है, बच्चे भी बड़े हो रहे होते हैं, प्लस द चेंजेस दैट फीमेल्स आर अंडरगोइंग. तो ऐसे में मूवमेंट का हमारे मूड पे क्या इफेक्ट होता है? सो सच अ नाइस क्वेश्चन. सो व्हाट आई से, देखो हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो हैं. देयर इज नो वन whose life goes like this. Everyone moves in the curves that we see. बट जब आप वर्कआउट करते हो ना, तो एक वो फीलिंग रहती है कि चलो किसी एक चीज पे तो मेरा कंट्रोल है. वर्कआउट वो एक सेफ आउटलेट देते हैं जहां पे हम अपना स्ट्रेस रिलीज कर सकते हैं, अपने एंगर को, अपनी सैडनेस को विदाउट सप्रेसिंग इट हम रिलीज कर पाते हैं. So I remember I used to do kickboxing some time back, and इतना अच्छा स्ट्रेस बस्टर मेरे लिए है नहीं. आपको आपका जो भी गुस्सा, आपका जो भी स्ट्रेस है, वो बैक को पंच करने में लाइक गोज अवे. सो Gives you that dopamine high, na? yeah. So you get those endorphins, your dopamine, it's all there. So आपका कितना भी difficult phase हो चाहे लाइफ का, ऐसा नहीं कि वो डिफिकल्टी लेवल कम कर देगा वर्कआउट, बट हाँ वो थोड़ा कम ओवरवेलमिंग हो जाता है आपके लिए. एक पॉजिटिव साइड एक दिन का, आप यू जस्ट लुक ओवर टू इट विच गिव्स यू द स्ट्रेंथ टू डील विद दैट डिफिकल्ट फेज ऑफ योर लाइफ. सो इट्स जस्ट लाइक कि जैसे आपको फ्रेंड्स के साथ में आप बाहर जाते हो, आप खुश होते हो, आप टीवी देखते हो, आप खुश होते हो, और वो आपको एक हैप्पी हार्मोन देता है. इट्स द सेम लाइक अब जब आप वर्कआउट रेगुलर करते हो, वो भी आपको वो हैप्पी हार्मोन देता है, एक वो कम्युनिटी के साथ में आपको वो वाइब देता है कि वो आपका डिफिकल्ट फेज या लो फेज भी होता है तो वो भी आराम से ना निकले, बट थोड़ा कम मेहनत से निकल जाता है. मतलब इट विल नॉट रीच टू अ लेवल जिसमें आपको लगे कि अरे अब मैं बिल्कुल आई कांट डू एनीथिंग मोर इन माई लाइफ. वो नेगेटिव और एकदम लो फेज में जाने से आपको डेफिनेटली बचाता है. अभी आपने कहा वो तो टीवी देख के भी हमें हैप्पी हार्मोन मिल जाता है, तो व्हाई वुड समबडी गो आउट फॉर अ वर्कआउट? व्हाट इज द डिफरेंस? वो जो हैप्पी हार्मोन है वो बिल्कुल शॉर्ट टर्म वाला डोपामीन है. मतलब आप सोचो कि आप स्क्रॉल कर रहे हो, एक रील आपने स्क्रॉल करी, इट्स लाइक यू स्क्रॉल एंड यू जस्ट फॉरगेट इट. This 1 hour of workout will give you a dopamine that will last throughout the day. So it's not a very short-lived dopamine. It gives you happy hormones to stay for the day. So that's how it is. इसीलिए टीवी देखने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये भी आके करिए. Yes, yes. A lot of women feel that they don't have time for the workout. अब फीमेल्स के साथ तो हमेशा घर भी है, बच्चे भी हैं, फैमिली वर्क प्रेशर्स भी आजकल होते हैं, सो दे आर ऑल बाउंड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ऐसे में व्हाट इज योर मैसेज टू दीज वुमेन? सी ये ना मेरे पास में भी रोज आते हैं इस तरह के लोग, तो मैं उनको सिर्फ एक चीज कहती हूँ कि ओनली फिट मॉम्स मेक फिटर होम्स एंड हैप्पी वुमेन मेक हैप्पी फैमिलीज. सो हम वी डू एवरीथिंग, यू नो, सो वी डू वर्क, फैमिली एंड कुछ भी जो भी हमारी हमारी लाइफ में आता है. क्यों? बिकॉज वी फील वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम. सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें समझना है कि वो हमारे लिए, खुद के लिए भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि मेरे को अपने आप को फिट रखना है, मेरे को अपने आप को खुश रखना है, और उसके लिए अगर वर्कआउट मुझे हेल्प करना है, देन व्हाई नॉट वर्कआउट. So work out and you are responsible for your own self. It should become non-negotiable for you, as non-negotiable as brushing your teeth. जैसे मैं सुबह उठूं और बिना ब्रश करे अगर मैं किस दिन रह जाऊं तो मेरे को कैसा लगेगा? मतलब ऐसे तो कभी ऐसा होता नहीं, क्योंकि हमारे लिए वो इतना इंपॉर्टेंट है कि हम जरूर करते हैं. बट अगर वो किसी दिन छूट जाए हमसे ब्रश करना, वील फील दैट पॉज ना कि हमने नहीं करा, हमने ब्रश नहीं करा. नॉन नेगोशिएबल फॉर यू कि यार मैंने वर्कआउट नहीं करा तो मैं मिस करने लगूं वर्कआउट को. आप अपने आप आओगे उस वर्कआउट के लिए. बेसिकली ये प्रायोरिटीज के बारे में है, क्योंकि जिस चीज को हम अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज करते हैं उस पे हम लोग टाइम थोड़ा. बिल्कुल बिल्कुल. तो आपका त्योहार हो, आपके बच्चे की पीटीएम हो, आपके घर में कोई आया हुआ हो, आपको कहीं बाहर जाना हो, सो देयर आर वेज टू स्टिल वर्क आउट, राइट? इट इज यू टू डिसाइड कि आप कैसे उस चीज को प्रायोरिटाइज. अगर आप प्रायोरिटी दोगे तो आप आधे घंटे का टाइम निकाल लोगे,
हो सकता है आप 24 एक घंटे घंटा ना में कर हाफ पाओ एन उस आवर, दिन, नॉट हाँ, नेसेसरी आप वो 10 हाफ एन आवर आप कर लोगे। और आजकल किलोमीटर। तो यू हैव फॉर्म्स लाइक ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल है, ऑफलाइन फॉर्म अवेलेबल है, यू हैव सो मेनी फॉर्म्स अवेलेबल। आप किसी भी फॉर्म में करिए उसको, बट एटलीस्ट आप करिए तो सही उसको। आप रादर देन डूइंग नथिंग एट ऑल, एटलीस्ट यू आर डूइंग 20%, 30%, 40%, जितना आपको टाइम मिल रहा है। सो पीरियड्स में वर्कआउट नहीं करना, क्यों नहीं करना? सो इट्स जस्ट लाइक कि वो आप पीरियड्स में कोई और काम नहीं छोड़ते ना, सो व्हाई डू यू वांट टू लीव दिस? एंड इट्स एज इम्पोर्टेंट, अगर आपको लगता है कि आप आपके लिए दिस इज योर वे ऑफ मेकिंग योर सेल्फ हैप्पी, मेकिंग योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन हैप्पीनेस, दिस इज वॉट विल मेक यू डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो सिंपल मैसेज यही है कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करें। आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करेंगे तो वर्कआउट अपने आप प्रायोरिटाइज हो जाएगा। आ जाएगा। एक चीज और मैंने देखी है कि कई फीमेल्स को फिटनेस को लेके कुछ मिथ्स होते हैं, आपने भी इनकाउंटर करे होंगे। लॉट्स ऑफ फीमेल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को पर्टिकुलरली लेके दे हैव सर्टेन मिथ्स। तो व्हाट आर दोज मिथ्स दैट women usually have and why are they not actually relevant? ओके, सो जैसे मैं कहूँ लाइक विमेन, लाइक जैसे आपने बोला कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या होता है, लोगों को लगता है कि लेडीज को स्पेशली लगता है कि अगर हमने भारी डंबल उठा लिया तो हमारे ऐसे डोले निकल जाएंगे जैसे आदमियों को होते हैं, वील हैव लाइक बिग शोल्डर्स। सो इट्स नॉट इजी फॉर women टू मेक दोज काइंड ऑफ शोल्डर्स एंड मेक दोज काइंड ऑफ बाइसेप्स। हमारे पास वो हार्मोन नहीं होता, वी डोंट हैव टेस्टोस्टेरोन लाइक मेन डू। सो हमारे पास वो इतनी कम मात्रा में होता है कि हम बहुत मेहनत करेंगे तब जाके हमारे शायद डोले वैसे बन पाए। सो दिस इज अ मिथ कि मेरे को हेवी लिफ्ट करने से आई विल बिकम वेरी बल्की। सो सो गो अहेड, लिफ्ट whatever weight you can according to your own capacity. Just don't be afraid of the fact that you are going to become bulky. दूसरा myth मैं देखती हूँ that women should not work out in period. I give them one example. You tell me one athlete, मान लीजिए we have a lot of women athletes these days, right? And women athletes, if they start thinking that periods में I don't have to work out, will they skip a race because of that? Will they skip a match because of that? Will our women cricket team miss a match because they're on their periods? The answer is no. Irrespective of the fact, whatever phase of life they are in, they still do that physical movement. Yes. So periods are, it's not going to should not be stopping you from working out. I understand you might be a little low on certain days, and which is okay. You can listen to your body, go slow on those particular days if you wish to. Generally, what I have seen, if you work out during periods, it's rather a happy hormone time for you, and it keeps you positive throughout the day. It reduces your pains if you continue to work out during the period. Just listen to your body. Not that you should not be working. हम छुट्टी मार के बैठ जाए ऐसा जरूरी नहीं है, हम घर का कोई काम नहीं छोड़ते हो अगर आप पीरियड्स पे देते हो। Thirdly, I see cardio. People think cardio is best for weight loss. Cardio is good. I'm not saying we should not do a cardio, but cardio should be supported by strength training along with mobility, as I mentioned earlier. Because it has to be a complete package. You just cannot go in one direction. You will see a lot of yogis doing cardio. You will see a lot of athletes doing strength training. So they both go together hand in hand. It should not be one kind of workout forever. सब चीजें डिफरेंट तरह की रिक्वायरमेंट के लिए जरूरी है. So it should be a combination. Like we do here, a combination. We do a cardio, we do strength training, we do yoga, we do Pilates. So we do a lot of mixed activities because of the same reason. एक मिथ लाइक थिन पीपल डू नॉट नीड वर्कआउट. अगर Yes. ऐसा होता है ना, सो अगर ऐसा होता, आप सोचो ऑल द बॉलीवुड एक्ट्रेसेस दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, व्हाई शुड दे बी वर्किंग आउट? दे आर वेरी थिन है ना, और उनको जरूरत नहीं है अब करने की वर्कआउट. तो दैट इज नॉट द केस. इट्स नॉट बिकॉज दे आर थिन that they are wanting to work out, they are not wanting to work out. It's because we want to work out because we want to maintain our muscles, we want to maintain our strength, not because we want to lose weight always. So patla and mota hona can be maintained with the diet also, but mera muscle or meri strength ko maintain karne ke liye workout is what is important.
और एक जैसे आपने बहुत सुना होगा ना, मतलब मैं तो कुछ खाती ही नहीं, मैं फिर भी मोटी होती जाती हूँ, मेरे को तो हवा भी लगती है। सो हम सब कहते हैं, बट मैं नहीं खाती इज नॉट डाइटिंग। हम्म, डाइट वुड मीन कंट्रोल्ड पोर्शन के साथ में आप सारे एलिमेंट्स जितने जरूरी है बॉडी के लिए आप सब खाइए। सो नॉट ईटिंग इज नॉट समथिंग दैट यू शुड बी डूइंग व्हेन यू वांट टू डाइट। व्हेन यू वांट टू डाइट, डाइट शुड मीन, एंड डाइटिंग शुड नॉट बी अ टेम्परेरी फेज, है ना। जैसे मैं कहती हूँ, मैं तो आजकल डाइटिंग पे हूँ, आजकल डाइटिंग नहीं होना चाहिए, इट शुड बी माई लाइफ स्टाइल। कि हाँ, मैं आजकल नहीं हूँ, मतलब मैं डाइट पे हूँ, मतलब मैं थ्रू आउट लाइफ डाइट पे ही रहना चाहिए मेरे को, विच डज नॉट मीन दैट you stop going out, you stop mingling with people, or you stop yeah, going actually, out to dieting means parties, mindful or nutrition. ऐसा For नहीं है, me, but हाँ, yes, even the socializing should not mean just eating. hmm. Then you should know where to put a stop to. Yes, yes, I agree with that thought a lot. So, what is your message to someone who wants to start their fitness journey? क्या वो छोटे छोटे steps ले सकते हैं so that they are able to build their consistency? Okay, so what when so I have a lot of women who come, and मेरे पास ऐसे batches नहीं चलते, like I don't have like a beginner batch or an intermediate batch or a advanced batch. I have all people who join in the same batch. So I might have people who have been working out for 9 years, and people who have been working out for 1 year, 6 months, and still new people joining in. So whenever somebody new who joins in, first thing I tell them is please do not compare yourself with anyone around here. So आप जिम में भी जाते हैं, आप कहीं पे भी जाते हैं, आपको दिखेंगे ऐसे लोग जो बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहे होंगे। इसका मतलब ये नहीं है, सी दे ऑल्सो डिड नॉट स्टार्ट फ्रॉम दैट लेवल, दे हैव रीच दैट लेवल आफ्टर सर्टेन ईयर्स। सो इट्स ओके, आपने जब आपने स्टार्ट किया, आप अपने आप को सामने वाले से या पड़ोस वाले से कंपेयर मत करिए। यू स्टार्ट स्लो, दे आर डूइंग 20 repetitions, आप 5 करिए, दैट्स ओके। बस ट्राई टू लर्न द राइट फॉर्म फर्स्ट ऑफ अ एक्सरसाइज, यू आर न्यू टू इट, दैट्स ओके। बट एक्सरसाइज का फॉर्म सही पता करके आप कम रेपिटेशंस कीजिए, इट इज बेनिफिशियल इन लॉन्ग रन। आपकी धीरे धीरे बॉडी आपको बताने लगेगी कि अब मैं इसके रेपिटेशंस बढ़ा सकती हूँ। अगर आपने सही फॉर्म को पकड़ लिया है तो आप बिना इंजरी के साथ में ज्यादा रेपिटेशंस भी कर पाओगे फिर। सो इसलिए वन थिंग दैट आई फॉर श्योर टेल देम इज प्लीज डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद एनीबडी। अगर आपको कुछ कंपैरिजन करना है तो आप अपने आप से, अपने प्रीवियस सेल्फ से कंपेयर कीजिए। आपने डे 1 ज्वाइन किया था, आप शायद 5 भी बड़ी मुश्किल से कर पा रहे थे। आज की डेट में आफ्टर 6 months you might be able to do 20 repetitions. So see, that's the progress that you have made over the period of those 6 months. So first is just do not compare yourself. And one more thing is ki, whenever you start working out, listen to your body. So especially when you start working out, your body has never seen herself move in that particular fashion. आप अचानक से सोचो कि मैं उसको बंदे को, इस बॉडी को मैं 1 घंटा चक्री की तरह घुमा लूंगा, ऐसे नहीं होता होगा ना। सो इट्स अ जर्क फॉर योर बॉडी ऑल्सो। सो स्टार्ट स्लो, इट्स ओके टू टेक ब्रेक्स इन बिटवीन। आप छोटे आप 5 मिनट का सेशन कीजिए, 10 मिनट का सेशन कीजिए, फिर एक 5 मिनट का, 2 मिनट का एक ब्रेक लीजिए, इट्स ओके। अगर आपको लगता है कि आप लगातार वर्कआउट्स नहीं कर पाते, मे बी व्हेन यू स्टार्ट फॉर जस्ट हाफ एन आवर, गिव योर सेल्फ हाफ एन आवर। एंड आपको लगता है बस मैं आधे घंटे से ज्यादा नहीं कर पा रही हूँ, इट्स ओके, गिव योर सेल्फ हाफ एन आवर, धीरे धीरे इंक्रीज इट, यू विल रीच टू दैट 1 hour आराम से, दैट्स ओके। सो बट लिसन टू योर बॉडी, आराम से इंप्रूव करिए, इम्प्रोवाइज डेफिनेटली करने की कोशिश करिए, यू शुड नॉट बी गिविंग अप। बट एक चीज जो जरूर करिए वो ये कि अपने आप को जहां पे भी आप वर्कआउट कर रहे हैं वहां पे अपने आप को लेकर जाइए। वो काम ट्रेनर नहीं कर सकता। ट्रेनर आपको बेड से उठा के, कोई भी ट्रेनर, लाइक फॉर दैट मैटर, आपको ट्रेनर बेड से उठा के वर्कआउट नहीं करवा सकता। आपको अपने आप को लेकर Just जाना show है। up. Hmm. Yeah, just show up on a daily basis, irrespective, because you'll have pains when you work out. When you start working out, you have those pains, like वो पता लगेगा आपको कि मेरे muscles stretched up and they are all swollen, and you will feel that pain and your body will not want to move. बट वो काम आप करिए, बस आप अपने आप को लेके जाइए, जस्ट शो अप एवरी सिंगल डे, and slowly your body will start welcoming that movement. It will
stop having those kind of pains unless you work out a particular muscle too much on a particular day. But you'll be happy to see you there on a daily basis yourself. Wonderful, wonderful. Finally, Anchi, one last question that I want to ask you is, if you want to describe, if you have to describe what fitness really means to you in one sentence, तो क्या sentence होगा वो? Okay. So I would say fitness to me is ability to feel strong, confident, and in control of your body and mind every single day. It should One not be one day. It gives you the confidence to be yourself every single day. Yes, yes. I truly, truly, truly agree. I cannot agree more with this statement, and I love it. Thank you so much, Anshi. You've given such a powerful session today to all our viewers, women who have certain myths and certain mindset around fitness. So this session is very, very important in breaking those myths and those preconceived thoughts that we have around fitness. Fitness is not just weight loss. Fitness is your emotional and physical well being. So, if you have been putting it off for a very long time, please, please be motivated enough to start your journey from today. So thank you so much, Anshi. Thank you so much for joining us today. It was lovely having you, and thank you so much for your message. By the way, those people who do not know Anshi runs a Fitbeat studio, especially for women in Indirapuram, Yes. Ghaziabad, Yes. and she does We give have online online classes as well. In case you are somewhere who is not near Indirapuram, we are happy Yes, to have online she takes classes. online sessions as well. So those who want to get in touch with Anshi, I will be dropping her contact details in my description below. So you can get in touch with Anshi. So thank you so much, Anshi. Thank you. Thank you so much for having me, Sulba. Thanks a lot.